Apart from liver, alcohol is damaging to heart. It causes, उसको क्या कहते हैं, alcoholic cardiomyopathy. It can cause weakness of the heart, pumping of the heart reduces. It can cause neurological problems like dementia, याद नहीं रहना, भूल जाना, पहचानने से इनकार कर देना, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, which is secondary to deficiency of vitamins. Then it can lead to damage to peripheral nerves. उसके कारण पैरों में दर्द होना, हाथ पैर में झुंझुनी आना. Apart from liver, the next most important organ which is affected by alcohol in abdomen is pancreas. Hi, I'm Avni Arya and you're watching Healthy India by Nation Next. Today we had the pleasure of inviting renowned gastroenterologist Dr. Shrikant Mukevar. He has an experience of over 4 decades in the field of gastroenterology and needless to say, he has gained proficient skills and knowledge over time. Welcome to the show, sir. Thank you. Thank you so much. So firstly, I would like to ask what exactly gastroenterology is and what are some problems or issues that people face that a gastroenterologist can deal with and cure. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो साइंस है, ये यानी मुंह से लेके मलमार्ग तक जो भी ऑर्गन्स है, इसकी बीमारियों को गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में कवर किया जाता है. यानी आपको कहने का है तो आहार नलिका, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये बीमारी इसमें कवर होती है. इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और पित्त की नली और स्प्लीन, इनकी बीमारियां, ये ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां भी इसमें कवर होती हैं. इन अ लाइटर सेंस वन कैन से दैट the science starts with the right hand and ends with the left hand. So what are the problems or issues that a gastroenterologist commonly deal with? Yeah, that's a very common question and people in India are very obsessed about the problems pertaining to gastroenterology. लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि कॉमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं वो यानी गैस, एसिडिटी, पेट साफ नहीं होना जिसको हम कब्ज कहते हैं. उसके सिवाय गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम कवर होते हैं, जैसे किसको निगलने में तकलीफ हो गई, खून की उल्टी हो गई, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग हो गया, पीलिया हो गया, पेट में पानी आ गया, पैरों में सूजन, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, पेट कैंसर, ये सब प्रॉब्लम्स हम कॉमनली गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में डील करते हैं. राइट. सो जैसे भी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गई है, काफ़ी लोग आर लेजिंग अराउंड मोर, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं अब लोग, एंड अल्कोहल ऑल्सो प्लेज अ मेजर पार्ट इन टुडेज लाइफस्टाइल. सो हाउ डज अल्कोहल अफेक्ट लिवर? What I would say is normal alcohol, what is the safe alcohol consumption? Yes. WHO definition of safe alcohol consumption ऐसी है, आपका 1 unit of alcohol is 45 ml of whiskey, 120 ml of wine and 350 ml of beer. So any person who is consuming 2 units, that is 1.5 peg of whiskey or 240 ml of wine or 700 ml of beer is supposed to be safe for Like a male. Okay. And for female it is 1 unit, for male it is 2 units. So basically डेढ़ पेग whiskey, because there are mostly whiskey drinkers, डेढ़ पेग whiskey हर दिन लेना is safe. अल्कोहल के कारण क्या क्या होता है? अल्कोहल के कारण लीवर में चर्बी जमा हो जाती है जिसको फैटी लीवर बोलते हैं. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है. हेपेटाइटिस यानी लीवर की सूजन, जिसमें पीलिया हो जाएगा, लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाएंगे. और अगर आप कंटिन्यूसली ड्रिंक करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years in higher quantity, more than 180 ml per day,
उसके साथ अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस का मतलब जलोदर की बीमारी, पेट में पानी, पैरों में सूजन, खून की उल्टी, बेहोशी की हालत, ये सब सिम्टम्स सिरोसिस में होते हैं। और उसकी नेक्स्ट स्टेज यानी लीवर का कैंसर। Okay. So apart from liver, alcohol is damaging to heart. It causes, उसको क्या कहते हैं, अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी. It can cause weakness of the heart, pumping of the heart reduces. It can cause neurological problems like dementia, याद नहीं रहना, भूल जाना, पहचानने से इनकार कर देना, वर्निकेज एनकेफेलोपैथी, which is secondary to deficiency of vitamins. Then it can lead to damage to peripheral nerves. उसके कारण पैरों में दर्द होना, हाथ पैर में झुंझुनी आना. Apart from liver, the next most important organ which is affected by alcohol in abdomen is pancreas. Pancreas ये ग्रंथि है जिसको अग्नाशय बोलते हैं. तो अल्कोहल के कारण पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है जिसको पैनक्रेटाइटिस कहते हैं. क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस यानी पैनक्रियाज का हमेशा के लिए डैमेज, परमानेंट डैमेज. उससे क्या होता है, डायबिटीज होता है, पेट में दर्द होता है, पतले दस्त होते हैं, फैट माल डाइजेशन होता है. समराइजिंग, अल्कोहल डैमेजेस लीवर, इट डैमेजेस पैनक्रियाज, उसके साथ हार्ट, nerves and brain. So these are all the organs which are damaged by alcohol. So, and apart from that, alcohol is responsible for making accidents, anxiety, depression, all those psychological problems are there. You drive with the alcohol and it causes sudden death. I was reading somewhere and then I felt that alcohol is one of the leading causes of death in the most productive age of the life. It is said that around 18 million people, they die of alcohol every year throughout the globe. So that's a big number. And in India also, in the most productive period of the life, alcohol is one of the most important player for damage. It's the fifth most common cause of death, and 5% mortality all over the world is because of alcohol. Like you said about depression and anxiety, I want to know how gut health affects mental health. Like, what's the relation? Yeah, that's in fact a very common problem which we face in our practice. अगर हमारे पास 100 मरीज हैं, तो 100 मरीज में से 30 से 40 मरीज को एंजाइटी, डिप्रेशन के कारण गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम होते हैं. जब हम मरीजों को बताते हैं कि आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, तो वो उनको बिलीव नहीं करते हैं कि हमको क्यों दिखाना है. बिकॉज 40 से 50% प्रॉब्लम, उससे ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, आर बिकॉज ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन. सो देर इज़ what is called as gut-brain interaction. There are some hormones like serotonin and all, those are liberated in the gut and they act on the brain, and other way around, the anxiety, depression is responsible for GI problems. The commonest problem which I would say of these are two problems. One is called as irritable bowel syndrome and another is called as functional dyspepsia. Both these are psychosomatic disorders. Psychosomatic means मानसिक तनाव के कारण पेट बिगड़ जाना. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज सपोज टू बी एक सबसे कॉमन, सर्वसाधारण बीमारी है कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास सबसे ज़्यादा मरीज फंक्शनल डिस्पेप्सिया और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आते हैं. Because of the stress. Yeah, because of the stress. Anxiety plays a very major role in the pathogenesis of these disorders. तो ऐसे लोगों को जैसे इरिटेबल बावेल रहे, नॉर्मली हम ये बताते हैं कि आंत का काम रहता है कि लैट्रिन आने के बाद में उसको जमा करके रख दें
और 24 घंटे में एक बार या 2 बार कर दे, तो इरिटेबल बाउल वालों में इंटेस्टाइन जमा नहीं कर सकती है प्रॉपरली, Okay. तो उनको बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। कोई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, उसके साथ एब्डोमिनल पेन होता है। सो इन डेफिनेशन, एब्डोमिनल पेन विथ ऑल्टर्ड बॉवेल्स एंड नो ऑर्गेनिक डिसीज, इसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। एंड देन देर इज़ अ डेफिनेशन कि ये 6 महीने से रहना चाहिए, और उसके कोई क्राइटेरिया है, इसको रोम 4 क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि वो ऑर्गेनिक डिसीज नहीं है, यानी Okay. ऐसे लोगों को आप ब्लड टेस्ट करो, सोनोग्राफी करो, कोलोनोस्कोपी करो, किसमें कुछ मिलता नहीं है, बट दे हैव अ प्रॉब्लम। Because of stress. Yeah, it's because of the stress and psychosomatic. Yeah. So I want to ask, can it be vice versa? Can somebody has gastric issues first and then have like a mental? Yeah, in fact, there are many chronic illnesses which are GI related illnesses. They can be associated with anxiety and depression. Like irritable bowel syndrome, by going to toilet many a times, they get anxious, depressed, they are not going out of the home, Right. घर में ही बैठे रहते हैं, they have a fear कि हम जाएंगे बीच में Right. लाइटरिन right, लगेंगी तो right, क्या करेंगे। Right. तो ये सब इश्यूज है। आईबीडी के पेशेंट्स रहते हैं, आईबीडी यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स कोलाइटिस, ये जीवन भर रहने वाली बीमारी है कि जिसमें आंत में सूजन आ जाती है। इसमें ऐसे लोगों को बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, ब्लड आता है, पेट में दर्द होता है, ये भी बहुत एंग्शियस एंड डिप्रेस रहते हैं। एंड देर इज़ ऑलवेज अ एलिमेंट कि अगर आपको बताया कि आपको पेट का कैंसर है, तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच आफ्टर इफेक्ट ऑफ इलनेस रहता है। सर आपने फैटी लिवर की भी बात की थी, Yeah, तो yeah. ऐसा एक मिथ है कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को ही फैटी लिवर होता है, बट हम टी टॉटलर्स में भी देखते हैं फैटी लिवर। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या इसके क्या कॉजेज है? Yeah. This one of the burning topics is fatty liver. So what is fatty liver? Normally 100 लीवर के सेल लेंगे तो 5 सेल से कम, 100 में से 5% से कम सेल में लीवर की चर्बी रहनी चाहिए। बाय डेफिनेशन अगर 5 सेल के ऊपर भी लीवर में चर्बी रही तो इसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। ओके। एंड सबसे कॉमन कारण फैटी लिवर का यानी ओबेसिटी, ओवरवेट, ज़्यादा वजन रहना। फिर जैसे अगर आपका BMI 35 के ऊपर है, ऐसे 100 मरीज लेंगे तो 100 मरीज में 80 से 90% लोगों को लीवर में चर्बी पाई जाती है। डायबिटीज़ ये सेकेंड कॉमन कारण है, 70 से 80% डायबिटीज़ वालों को लीवर में चर्बी होती है। BP, चर्बी ज़्यादा रहना जिसको अपन डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, यानी कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में ज़्यादा होना, ये भी एक कारण है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहल तो है ही मेजर कारण नेक्स्ट टू ओबेसिटी। कोई मेडिसिन है, कोई HIV के मेडिसिन है, कोई एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, दोज आर रेयर कॉजेस ऑफ फैटी लिवर। लेकिन मेन किलर इज ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। आप इंडिया का ये प्रिवेलेंस देखेंगे, 10% पीपल इन इंडिया आर डायबिटिक, 20% are having high BP, and 30% people are obese. So that is how, you know, and if you have 3 things out of the 5, that's lipids, sugar, BP, मोटापा and low HDL, ये 5 में से 3 चीज रहे तो इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इम्पॉर्टेंस ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वालों में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, लकवा ज़्यादा होता है,
और लीवर अंदर से खराब होता है, सिरोसिस। सारे जग में लीवर खराब होने का सबसे कॉमन कारण दारू नहीं होते हुए मोटापा है। सो मोटापा, शुगर, डायबिटीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्या करना चाहिए? वेट कम करना, एक्सरसाइज करना, शुगर को कंट्रोल रखना, बीपी को कंट्रोल रखना, लिपिड्स आपके कम करना। So, diet and exercise, these are all lifestyle disorders. There are no medicine. आप बोलेंगे कि इसके लिए गोली दो? No. I always tell to my patients, if there are 100 marks, 60 are for diet, 30 is for exercise, and 10 only for the drugs. So, weight loss, weight reduction, diet, low caloric diet, high fiber diet, exercise, or medicines has a last role. So you have to control your diabetes, control your BP, reduce your weight, reduce your lipids. उससे ही आपका फैटी लिवर कम हो जाता है। So are there particular vegetables or particular type of meat or particular type of nuts that people have to consume to prevent? Basically, you have to have high fiber diet, low caloric, high fiber diet. You eat more salads, you eat more green leafy vegetables, avoid sweets, high calories, avoid ghee and oil and all. Okay. So as you said that there are certain genetic disorders that may pass on. So what are some genetic disorders that can pass on to the child if the mother is facing, and how does it affect the mother's health? I mean, genetic disorders pertaining to fatty liver or So genetic in the disorders? field of gastroenterology, like In the field of yeah, gastroenterology. generally, yeah. See, basically जेनेटिक डिसऑर्डर्स में लीवर में एक आता है जिसको हम विल्सन डिसीज़ बोलते हैं। Okay. विल्सन डिसीज़, ये डिसीज़ ऐसा है कि अगर फैमिली में है तो बच्चों को होता है। एंड यूजुअली कंसेंग्यूअस मैरिजेस जो रहते हैं, आपस में रिलेशन में जो शादी होती है, ऐसे लोगों में विल्सन डिसीज़ ज़्यादा होता है। विल्सन डिसीज़ में क्या होता है कि कॉपर लीवर में जमा हो जाता है और उससे लिवर खराब हो जाता है। सो इट्स अ डिसीज़ ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। नॉर्मली क्या हो जाता है कि इंटेस्टाइन से, डाइट में जो कॉपर है वो इंटेस्टाइन से लिवर में जाता है और लिवर में एंजाइमेटिक एक्शन से उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो विल्सन डिसीज़ के पेशेंट में वो एंजाइम की कमी रहती है, इसलिए लीवर में कॉपर जमा होके, हेवी मेटल जमा होके, देन कंडीशन लाइक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक एंजाइम रहता है, उसकी कमी, ये भी जेनेटिक है। हीमोसिड्रोसिस, इसमें भी जेनेटिक बैकग्राउंड है। सो ये लीवर डिसीजेस विच आर रिलेटेड। देन देर आर familial diseases like ulcerative colitis, colitis की बीमारी, That can be passed down. yeah, that can be, if you have a family history of colitis, then the chances of having to the offsprings are more. कोलाइटिस, कोलन कैंसर, ये भी एक फैमिलियल डिसीज़ है। अगर आपके पेरेंट्स को कोलन का कैंसर है, यू हैव मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग कोलन कैंसर। So there are so many genetic diseases which are important and which are transmitted genetically. So can we And then there are some familial diseases like आपके घर में किसको हेपेटाइटिस बी है तो घर के घर में उसका स्प्रेड हो सकता है। You have to be very careful and screen all the family members once we have hepatitis B or hepatitis C. So it's contagious basically. Yeah, it's contagious means it is transmitted parenterally. Okay. यानी पेशेंट का ब्लड अगर आपके ब्लड में गया तो ये होता है, लेकिन देर आर सम वेक्टर ट्रांसमिशन और कोई नीडल प्रिक ट्रांसमिशन, दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। After all that, I want to know how smoking affects. I mean, it's usually a lung-related thing, but how Yeah, does it affect the liver and the pancreas and the spleen and the intestines?
See, as far as smoking is concerned, smoking has nicotine and it has 4,000 toxic ingredients. So that was amazing. I was reading this and that was amazing to me also that overall आप कहाँ की भी कैंसर देखेंगे तो स्मोकिंग से पैनक्रियास का कैंसर ज़्यादा होता है, लीवर का कैंसर ज़्यादा होता है, इंटेस्टाइन का कैंसर ज़्यादा होता है. सो नंबर वन इज कैंसर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो स्मोकिंग वर्सेस नॉन स्मोकर्स में कैंसर का प्रमाण स्मोकर्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है. नंबर वन, पैनक्रेटाइटिस के मरीज में हम हमेशा बताते हैं कि स्मोकिंग आपने बंद करना चाहिए, अदरवाइज आपका पैनक्रियास की सूजन कम नहीं होंगी. अल्कोहल इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर पैनक्रियाटाइटिस, लेकिन यू हैव टू स्टॉप स्मोकिंग फॉर अ बेटर रिकवरी. एंड वी ऑलवेज एडवाइज आवर पेशेंट ऑफ पैनक्रेटाइटिस टू क्विट स्मोकिंग. स्मोकिंग से अल्सर्स होते हैं. स्मोकिंग लीड्स टू मोर ऑफ क्रॉन्स डिसीज. क्रॉन्स एक बीमारी है कि जिसमें बड़ी आंत में सूजन होती है, कोलाइटिस बोलते हैं, क्रॉन्स कोलाइटिस. कोलाइटिस कोलन यानी बड़ी आंत, कोलाइटिस यानी बड़ी आंत में सूजन. ऐसे लोगों को बार बार लेटरिन जाना, आव खून जाना, सो ये सब होता है. एंड ओवरऑल smoking has a detrimental effect on liver also. It has a toxic, it has toxins, they damage the liver, then they disturb the immunity of the liver. Smoking leads to more fibrosis and fibrosis is more risk for life. ऐसा कहा जाता है कि जिसको फैटी लिवर है वर्सेस जिनको सूजन है, फाइब्रोसिस है लिवर में, इसको नैश बोलते हैं. देर आर टू एंटिटीज इन फैटी लिवर विच आई फॉरगॉट इन द अर्लियर क्वेश्चन. यू हैव फैटी लिवर एंड यू हैव नैश. Okay. नैश इज इन्फ्लेमेशन. फैटी लिवर में खाली फैट रहती है. तो फैटी लिवर एंड इन्फ्लेमेशन में जिनको इन्फ्लेमेशन है इनको 15 गुना ज़्यादा लाइफ को रिस्क रहती है. दे हैव मोर कार्डियक रिस्क, दे हैव मोर risk of dying due to liver disease. So smoking overall is not good for our entire body, predominantly lung because it causes so many lung diseases, but GI tract also, mainly cancers are more. So there's no everyday limit for smoking, like you said, for alcohol. Like you just cannot smoke if you want to be healthy. Yeah. As we can see that food poisoning and constipation, these two ailments are also very common nowadays. Yeah. So what can cause food poisoning? Basically, I want to know. I will take one by one because Yeah. constipation Yes. is Yeah. itself is a different Yeah. subject, Yeah. you know. Yeah. Food poisoning is normally what happens is if you have a food which is stored, then the bacteria they get accumulated and they produce toxins और वो टॉक्सिन के कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है. तो इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं? उल्टियाँ होती हैं, पतले दस्त होते हैं. कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में रहा तो आपको बीपी कम हो जाता है, यूरिन कम हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है बिकॉज डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, चक्कर आ सकती है, आदमी गिर सकता है. एंड दैट कैन हैपन 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में ये होता है. सो कॉमनली इट इज़ बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग स्टेल फूड or consuming water which is not of RO based water use किया, उसमें infection. Water and food are the main sources. Especially that's why to prevent that what you have to do is to eat a fresh food and RO based water. That is the way to prevent it. Now रही बात constipation की. The constipation is a very troublesome symptom. लेकिन अगर आप 100 कॉन्स्टिपेशन वाले लेंगे तो 70 से 80% लोगों में कोई बीमारी नहीं मिलती. Okay. लेकिन आई वुड
ask, I will tell my viewers that कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर आपको ब्लड जा रहा है, आपका वेट कम हो रहा है, आपको खून कम है, या आपको यू आर अबोव द एज ऑफ 40 और आपको कॉन्स्टिपेशन सडनली चालू हो जाता है, यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, इसका पूरा जांच कीजिए कि क्या है। इट कैन बी द फर्स्ट लक्षण ऑफ कैंसर। ओके। सो इसको हम अलार्म सिम्टम्स बोलते हैं। अलार्म सिम्टम्स में क्या क्या आता है? एज अबोव 40, वेट कम होना, ब्लीडिंग होना, खून कम होना। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो इन्होंने जाना चाहिए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन? लोगों को लगता है कि हार्ड मोशन रहे तो कॉन्स्टिपेशन है। आई हैव द चार्ट विथ मी, दिस इज, वी कॉल इट एज अ ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। तो इसमें दिस टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, इंडियन पॉपुलेशन में ये 3 रहने के बाद में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। 4 इज नॉर्मल, 5, 6, 7 इसको ऐसे रहे तो इसको हम डायरिया बोलते हैं। ओके। हाँ, सो बाय देर इज अ फंक्शनल बाउल डिसीज पे एक कमिटी है, इसको रोम कमिटी बोलते हैं। तो वो उन्होंने कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या की है, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अगर आप 10 बार मोशन जाते हैं तो उसमें से 25% ऑफ द टाइम्स इट शुड बी हार्ड, द वे आई शोड यू। Out of 10, whatever days. So there are different definitions of constipation, but the Rome is the most scientific definition of constipation, where 25% of the times you should be passing hard motions, and less than 25% of the times you should have loose motions. तो 25% से ज़्यादा हार्ड मोशन रहना चाहिए, या फिर आपने कुछ मैन्योर्स यूज़ करना चाहिए कि होता नहीं है, लाइक पेशेंट बहुत देर तक लैट्रिन बैठता है, जोर लगाता है, ही इज़ यूजिंग इनिमा और डिजिटेशन टू इवैक्यूएट द बॉवेल। ये सब रहने के बाद इसको हम कॉन्स्टिपेशन कहलाते हैं। बट व्हाट इज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। दिन में 3 बार जाना वर्सेस हफ्ते में 3 बार जाना is defined as normal. So any person who is going 3 times in a week, once on the alternate day, versus 3 times in a day, 21 times is a week, is considered as normal. नॉर्मल। ओके। So normal की definition भी बहुत varied है। In fact, I must share with you that I was one of the task force members of the this ISG is our society for the bowel frequency, irritable bowel syndrome. So उसमें हमने रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का जो हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है, 60% of the people they would go once a day. ओके। Normal, I am talking about normal. This is a sample size of 4,500 people. 60% will go once a day, and 90% would go, rest 30% would go twice a day. ओके। So basically 90 to 95% लोग 1 या 2 बार जाते हैं। So that is defined as a normal stool frequency in Indian population. जिन्हें कोविड हुआ है, लाइक पीपल हु सर्वाइव्ड कोविड इन्फेक्शन, उन्हें उनके बॉडी में लिवर और स्प्लीन और इंटेस्टाइन और पैनक्रियास को कैसे अफेक्ट किया है कोविड इन्फेक्शन में? या कोविड के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि आदमी की टेस्ट चली जाती है, स्मेल चली जाता है। मेरे कोई पेशेंट्स ऐसे हैं कि गए 1-1.5 साल से, कोविड की सेकेंड वेव आई थी मई 2021 में, उसके बाद में करीबन 1.5 साल तक
उनको टेस्ट नहीं आया, वो स्मेल नहीं कर सकते फूड का, वॉट एवर दे ईट उनको समझ भी नहीं आता है क्या खाते हैं। सो इसका कारण क्या है? ऐसा बोलते हैं कि कोविड का वायरस इज इन्वॉल्विंग दी ऑल्फैक्टरी मीन्स सुनने वाली एंड गस्टेटरी गैंग्लियन। ब्रेन में जो गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी गैंग्लियन है उसमें वो अफेक्ट करता है और उसके कारण लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल होता है। नॉर्मली 2 महीने में मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट दी टेस्ट एंड स्मेल रिटर्न, लेकिन ऐसे भी कुछ किस्से हैं कि 1.5 साल तक स्मेल नहीं है, टेस्ट नहीं है। सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कोविड की हमने ये देखी है कि कोविड के बाद ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कोआगुलेशन इंक्रीजेस। ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होने से लोगों को जैसे हार्ट की आर्टरी चोक हो गई तो हार्ट अटैक आ गए, पेट की आर्टरी चोक हो गई तो इंटेस्टाइन में गैंग्रीन हो गया, ब्रेन की आर्टरी चोक हो गई, लकवा हो गया। तो ये बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस कोविड के बाद में देखे हैं। एंड बहुत सारे लोग बिकॉज फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बड़ा इलनेस हुआ है, वेंटिलेटर से रिकवर हुए हैं, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स कोविड के बाद में हम लोग जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा ये देख रहे हैं। That's it for today. Thank you so much for coming, हो sir. गया? Thank you. हाँ जी। Nation Next News Hub for New India.